एंड वेलकम टू नम्मा गणित यूट्यूब चैनल। और आज का लेक्चर में मैं बोलने वाला हूँ मैथमेटिक्स पढ़ा कैसे जाता है, एंड स्पेशली दिस लेक्चर इज टारगेटेड फॉर ऑल ऑडियंस, और वो बच्चे जो कि अभी क्लास 11th में हैं और क्लास 9, 10, 11 के जो बच्चे हैं उनके लिए, बिकॉज आपके पास अभी भी समय है दैट यू कैन बी डीपली इन्वॉल्व इन मैथमेटिकल थिंकिंग, और आप जेईई एडवांस के जो सिलेबस हो उसे बहुत ही आसानी तरीके से मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर कर सकते हो। तो इफ़ यू आर स्टिल इन 9, 10 एंड 11, सो प्लीज़ डू कमेंट और देखो आप कैसे पढ़ते हैं और हाउ यू विल फॉल इन लव विथ मैथमेटिक्स। आई टुडे टीच यू अ वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉल्ड मॉडुलस। तो देखो मैं अगर पढ़ाऊंगा तो मॉडुलस कैसे पढ़ाऊंगा, आपको पता है मॉडुलस को ऑल्सो वी टेल इट एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन, एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। The first step of teaching is feel, okay, and then we'll slowly go to the definitions and we'll do more rituals and exclusively or extensively उसको करना है। For example क्या है, तो mod is just a machine, you can imagine it is just a machine which will take any real number and give you only its absolute value, मतलब it will take away its sign, take away sign. So basically I can take modulus teaches us be positive or basically be non-negative, right? Quite optimistic concept, right? Be positive. क्यों? क्योंकि ये क्या करेगा, so this is the symbol for modulus function or modulus sign. So mod of -3 is 3, so it's taking absolute value. Mod of 0 is 0, it's already positive, it will not touch you. Mod -2 is 2, right? अब अगर मैं इसको फॉर्मली डिफाइन करूं, so if I ask you now what is mod x, now that depends actually whether x is positive, x is negative, or x is 0. For example, if I tell what is mod -2, you can't tell it's -2. So you can't tell mod x is x, right? That's the first answer people thinks because they feel x is a positive number. I have not mentioned anything about x being positive. तो ये प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऑफकोर्स जीरो भी हो सकता है। तो अगर मैं mod -2 को -2 बोल दूँ तो ये तो गलत जवाब हो जाएगा। तो इनफैक्ट हाउ टू करेक्ट इट, टेल mod -2 is minus of -2 and then forcibly we can make it correct. Similarly mod 2 is as it is, right? And mod 0 will be 0. तो यहाँ से टेक अवे क्या है, टेक अवे फ्रॉम दिस इज वेरी सिंपल. If I have mod of Golu and if Golu is positive, the answer will be as it is. But what if Golu is negative? So mod of Golu, if this Golu is let's say -2, -5, then I have to add extra minus. Why? Because Golu is already negative. So negative में if I'll put negative, then minus Golu will be positive. And if Golu is 0, it will be 0. So mod of 0 is definitely 0. So this is written in a very, what we call in a mathematical form now. What we call is mod of x will be x if x is positive. It will be minus x if x is negative. नेगेटिव अगर होगा x तो उसमें एक और माइनस लगा देंगे तो माइनस x अब पॉजिटिव होने लगेगा, and it will be 0 at x equal to 0. Now of course I have a choice to make it more compact. तो मैं x लिख सकता हूँ x greater than equal to 0 के लिए और माइनस x लिख सकता हूँ x less than. बहुत ही सिंपल। अब अगर तुम सोचो इसका ज्योमेट्रिकल फील तो क्या होने वाला है, तो ज्योमेट्रिकली व्हाट दिस मॉड x विल रिप्रेजेंट, बेसिकली सपोज मेरे पास ऑरिजिन है, मैं मॉड 5 की बात करूँ, so 5 is placed here, इट इज बेसिकली डिस्टेंस ऑफ 0 from 5, राइट? क्योंकि ये डिस्टेंस कितना है, गैप 5 है. व्हाट इज मॉड ऑफ -5, दैट आल्सो रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ऑफ -5 from 0. मतलब mod of x is nothing but distance of x from 0, right? So we can write it as distance of x comma 0 means distance of x from 0. ऐसे मैं इसको लिख रहा हूँ, dist x 0 means distance of point x from 0 on a real basis. तो अब अगर आप इसी फिलॉसफी से mod a minus b लिखोगे तो क्या होगा, suppose if I have two quantity a and b, that simply means distance of a from b, ये वाला distance. Okay, so basically I'm talking of this distance. So जैसे फील करो, what about 2 minus 3 का mod,
All of you know answer is 1. So if I'll place 2 over here, 3 over here, indeed this distance is. What about mod of 5 minus, let's say 15? So we have 5 here, 15 here. मैं वो 9-10 के बच्चों के लिए आज ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखो ये वाला डिस्टेंस कितना आ गया 10, ये डिस्टेंस 10। तो देखो इससे जादू हो जाएगा, क्योंकि जस्ट विद दिस बेसिक कॉन्सेप्ट आप जो हो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ आई आस्क यू mod x minus 1 plus mod x minus 2 is 1, find x. तो सबसे पहले हाउ विल यू थिंक एंड हाउ यू शुड थिंक। एक बच्चा एक बकेट ऑफ सॉल्यूशन बनाओ, बकेट ऑफ सॉल्यूशन। इस बकेट ऑफ सॉल्यूशंस में क्या करेंगे अपन, विल ट्राई टू फायर सम वैल्यू ऑफ एक्स। फॉर एग्जांपल एक्स को अगर मैं 2 ले लूँ, एक्स को 0 ले लूँ, कुछ रेंडमली ले लो, -1 ले लूँ, एक्स को हाफ ले लूँ, लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ देम वर्क्स। सो वी हैव टू फाइंड ऑल एक्स विच सेटिस्फाइड। तो अगर मैंने 2 लिया तो ये कितना हो गया 1 और प्लस 0, यस इट वर्क्स, वी आर लकी। 0 पे 1 + 2 3 आ गया, इट इज नॉट वर्किंग। -1 पे डेफिनेटली इट्स नॉट वर्किंग, हाफ पे इट इज हाफ एंड दैट इज 1.5, इट्स ऑल्सो नॉट वर्किंग। सो वो उप्स मोमेंट आ गया ना। x2 जो है that is the only solution as of now we are feeling. And then slowly your teacher tells you like, what if I'll take x is 1.5, what will you do? Of course you'll go and check it, right? 1.5 पे पहला आ गया 0.5 और दूसरा भी आ जाएगा, आप देख लो यहाँ पे आ जाएगा 0.5 minus of 0.5, आंसर इज 0.5 plus 0.5, oh it's working। तो एक तो तरीका है, एक बच्चा इसको केस मेकिंग करके कर लेगा, ही विल टेक x minus 1 greater than equal to 0, x minus 2 greater than equal to 0। तो ही विल मेक मेथड 1 में 1 रख लिया, यहाँ पे 2 रख लिया, ठीक है। फिर ही विल डू केस 1, केस 2, केस 3, विल सॉल्व द इक्वेशन। लेकिन हम इसको देखो कैसे करेंगे एक लाइन में। आई जस्ट डिकोड दिस इनटू इंग्लिश। व्हाट इज mod x minus 1? इट इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 1 फ्रॉम x, एंड प्लस मीन्स एंड distance of a point 2 from x is equal to 1, is equal to। The moment I converted maths into English, my problem is gone। कैसे? क्योंकि अब तो मेरे पास एक पॉइंट 1 है, एक 2 है, और ये गोलू जो है ये मूव कर रहा है इस नंबर लाइन पे। अब गोलू को ऐसे मूव करना है, so गोलू is x, right, such that its distance from 1 and its distance from 2, this sum of thread length should be 1। अब बताओ अगर गोलू 2 के इस साइड में है तो क्लियरली ये यही डिस्टेंस 1 है, so definitely it will be this thread length will definitely be 1 plus something, right? So Golu cannot be in this zone, sorry Golu। Can Golu be in this zone? नहीं, क्योंकि again if Golu will be in this zone, this distance plus this distance has to be 1, लेकिन this distance itself is 1, ठीक है। so 2 से जो डिस्टेंस होगा और 1 से ये 1 होना चाहिए, लेकिन 2 से डिस्टेंस तो 1 plus something है, definitely you have 1 plus something and something extra, how the hell it will be? Now what if Golu is anywhere between 1 and 2? Suppose Golu यहाँ पे, now see the interesting point, so this distance plus this distance of Golu, ये plus if this is alpha, what about this distance? Clearly is 1 minus alpha, why? क्योंकि ये distance 1 है। तो अब गोलू कहीं पे भी गोलू को घुमा दो, टुक 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 from 1 to 2, all answer will satisfy। so what is the final answer? Golu must be lying from 1 to 2, the x is lying from 1 to 2। अब देखो इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन है x is from 1 to 2। हालांकि इस क्वेश्चन को अब कोई दूसरा बच्चा जो है तीसरे तरीके से भी सोच सकता है। सो दिस वाज मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3। देखो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, आप एक ही क्वेश्चन को कितने अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं। अब कोई बच्चा इसमें बोलेगा x minus 1 plus mod x minus 2, और 1 को सर आई राइट x minus 2 और x minus 1 का डिफरेंस ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज़ आई कैन राइट दिस एज x minus 1 minus x minus 2। अब तुम सोचो, now if I call x minus 1 as some a and x minus 2 as some b, the question is mod a plus mod b is mod a minus b। अब सोचो अंदर what condition this will be true, so again you can do experimentation। जैसे a और b क्या क्या हो सकता है, या तो a और b दोनों पॉजिटिव होंगे, या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, या फिर सेम
अपोजिट साइड के होंगे, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, दिस आर द 4 पॉसिबिलिटीज, राइट। अब ये भी होगा, अगर ए नेगेटिव है बी नेगेटिव है, अब दोनों में से मैग्नीट्यूड वाइज किसका बड़ा है। अगर जैसे मैं mod 2 प्लस mod 3 ले लूँ, सो विल दैट बी mod 2 माइनस 3, क्लियरली नॉट, सो दे कैन नॉट बी ऑफ सेम साइन। अगर मैं अपोजिट साइन ले लूँ -2 और -3 का मॉड, तो यहाँ जाएगा -2 प्लस 3, तो ये भी गलत है, 5 इज नॉट गुड। अच्छा, तो अब अगर मैं अपोजिट साइन का ले लूँ, ए को 3 ले लूँ, बी को सपोज -2 ले, तब तो हो गया भाई 3 माइनस -2, तो 5 इक्वल टू 5, ये तो काम करेगा। अच्छा, मैं पहला वाला को -2 ले लूँ और दूसरे को सपोज 3 ले लूँ, तब पर भी काम कर रहा है, 5 इक्वल टू 5, ये भी काम कर रहा है। तो यहाँ से ये तो पता चल गया ए और बी जो होगा वो अपोजिट साइन होगा, मतलब ये कंडीशन जो होगा। अब तुम बोलोगे सर जीरो भी तो हो सकता है, एक बंदा जीरो, तो क्लियरली आप अगर इसमें से कोई भी एक बंदा जीरो हो गया, सपोज ए कैंसिल खत्म हो गया, तो मॉड बी इज पॉसिबल। अब पॉसिबिलिटीज है, ए ग्रेटर देन जीरो, बी लेस देन जीरो हो सकता है, और दैट विल बी ट्रू इफ ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो, और दैट विल बी ट्रू इफ आइदर ऑफ ए जीरो बी नॉन जीरो, और ए नॉन जीरो बी जीरो। आप देखो ऐसे बच्चे जैसे सोचते हैं, और दोनों जीरो हो गया मतलब एटलीस्ट वन। नाउ द सवाल इज, इस पूरे सिस्टम को कैन आई कैप्चर विद जस्ट वन फील्ड? बिल्कुल कर सकते, देखो कैसे, ए बी लेस देन इक्वल टू जीरो, तो दिस एक्सप्रेशन ऑटोमेटिकली स्पीक्स ऑन बिहाफ ऑफ दिस 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 दिस। अब ए का क्या वैल्यू है भाई, x-1, और बी क्या था x-2, ये लेस देन इक्वल टू जीरो, तो ये तो वे भी कर, आप आराम से सॉल्व कर सकते हो इसको, क्योंकि x1 है x2 है। अब कौन सा वैल्यू x का रखे जो ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू जीरो हो जाए, तो अगर 2 से बड़ा कोई भी नंबर लोगे तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव, इस रीजन में तो ये एक्सप्रेशन का वैल्यू ऑलवेज पॉजिटिव होगा। 2 से 2 पे जीरो होगा, 2 से छोटे पे नेगेटिव होगा, और फिर ये पॉजिटिव होगा। तो कोई भी नंबर सोच लो 1 से छोटा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो मेरा आंसर यहाँ से फिर से क्या गया, x जो है वो 1 से 2 के बीच में डांस कर रहा हूँ। अब सवाल यही नहीं है, तो देखो उसको मैं ऐसे भी बना दिया। अब फिर मैं नेक्स्ट मेथड से भी बना सकता हूँ, मेथड ग्राफ। देखो कैसे, मॉड x-1 प्लस मॉड x-2, ठीक है, तो इसको मैं अगर, ये इक्वल्स कितना था अपन के पास 1, अब मैं ग्राफ ही बना लूंगा, साइल प्लॉट y इक्वल टू मॉड x-1 प्लस मॉड x। अब ग्राफ बनाने में भी बच्चे क्या करते हैं, इसका केस मेकिंग करते हैं, लेकिन आप स्मार्ट हो सकते हो, क्योंकि मुझे पता है ये क्वांटिटी जैसा भी खुलेगा +-x-1 ओपन करेगा किसी भी इंटरवल में, ये भी ओपन होगा +-x-2। अब +-x-1 +-x-2 तो कुछ लाइन का इक्वेशन होगा, मतलब जैसा भी ग्राफ आएगा इट विल बी यूनियन ऑफ लाइन सेगमेंट्स, एग्रीड, मतलब लाइन सेगमेंट्स का समेशंस होगा। तो अब जब लाइन के लिए तो सिर्फ 2 पॉइंट काफी है, तो अपन एक पॉइंट फाइंड करेंगे जहाँ पे x-1 का मौत हो रहा हो, इट्स डाइंग एट 1, दूसरा पॉइंट जहाँ x+2 मर रहा हो, इट्स डाइंग एट 2। अब 1 पे इसका वैल्यू निकाल लो भाई, 1 आ रहा है, 2 पे 1 आ रहा है। अब तुमको पता है जो इस बीच में 1 और 2 के बीच में जैसे भी ओपन करे, ये कुछ ओपन करेगा, ये प्लस कोई कॉम्बिनेशन से ओपन करेगा, लेकिन एक ही लाइन बनेगा, लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट के लिए तो मैं यूनिकली ज्वाइन कर सकता हूँ। अब 2 के बाहर भी एक कुछ ओपन होगा, कुछ ओपन होगा, तो एक ही लाइन बनने वाला है, मोर देन 2 वो केस में। 2 के बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो अपने मन के अनुसार, बी हैप्पी, योर लाइफ योर चॉइस। 3 ले लिया, तो 3 पे कितना आ गया मेरे पास, 3 पे दिस इज 1 एंड 2 3। अब देखो 1 पे 1 आ गया, और 3 पे अगर मैं लिया तो 3 आ गया, तो तुम्हारे पास ग्राफ जो है कुछ ऐसा बन गया। अब एग्जैक्टली ये बाथटब जैसा लग रहा है, इसको बोलते हैं बाथटब कर्व बीटीसी। अब देखो मेरा ये आंसर जो है, मुझे चाहिए ये ग्राफ, ये फंक्शन और ये एक्सप्रेशन कब कब 1 लेगा। 1 मतलब इसका आउटपुट कौन x पे ये 1 लेगा, तो इस x पे क्लियरली 1 से ऊपर है। 1 कहाँ पे आ रहा है, देखो जब x तुम्हारा यहाँ पे डांस कर रहे हो 1 से 2 के बीच में, तब तो ये y इक्वल टू 1 आएगा। मतलब आउटपुट जो है, मैं इसको क्यों सॉल्व कर रहा हूँ y इक्वल टू 1 से, क्योंकि आई एम इंटरेस्टेड व्हाट वैल्यू पे ये जो फंक्शन है वो 1 दे रहा है। क्लियरली ऑल वैल्यू बिटवीन 1 एंड 2, आंसर इज x बिलोंग्स टू 1। ये हो गया इसका पांचवा मेथड। सिक्स मेथड भी है भाई, क्योंकि अभी तक मैंने इससे किया, 2 ट्रायंगल इनइक्वालिटी से किया, 3 गोलू गोलू से किया, पहला केस मेकिंग का, चौथा से कर लिया। अब देखो पांचवा मेथड क्या, मेथड 5।
मेथड 5 जो होगा वो ऐसे तुम सोच सकते हो, जो अगर कोई बच्चा मॉड x माइनस वन मॉड x माइनस टू इक्वल टू वन देखा, सपोज वो स्क्वायर कर दिया, तो ये आ जाएगा x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस x माइनस टू का होल स्क्वायर। अच्छा, ये आना चाहिए लीगर ही, मॉड एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी एक्स स्क्वायर, क्योंकि जब तुम मॉड का काम ही है तुमको नॉन निगेटिव बनाना है, और स्क्वायर भी वही कर रहा है। तो मॉड ऑफ x माइनस वन का होल स्क्वायर जो होगा वो जैसा भी ओपन करे प्लस माइनस, तो फाइनली तो x माइनस वन का होल स्क्वायर ही बन जाएगा, क्योंकि मॉड तो निगेटिव होने नहीं देगा, स्क्वायर करके और तुम पॉजिटिव कर रहे हो, तो ऑलरेडी पॉजिटिव को पॉजिटिव करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लस टू ए बी, सो टू इंटू मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ से क्या मजा आया, यहाँ से तुम्हारा मजा आ गया, जो क्या बनने वाला है यहाँ, टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये बनेगा, ध्यान दो क्या मजा आएगा, यहाँ से बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू। तो अब हम बोल सकते हैं ये टू एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वन वन कैंसिल प्लस फोर प्लस टू टाइम्स ऑफ मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू। अब इसको फिर से देखो, तुम टू को कैंसिल कर सकते हो, तो मेरे पास आया एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू प्लस, ऑनेस्टली आप बताओ कौन बच्चे थे 11th में और इवन जो 12 के बच्चे देख रहे हैं एडवांस वाले, आप कौन से बच्चे इतने तरीके से एक क्वेश्चन को सोच रहे थे, इस क्वेश्चन को कभी सोचे। इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस वन इंटू मॉड एक्स माइनस टू। अब तुम ध्यान से देखना, मॉड ए इंटू मॉड बी, आप दो पॉजिटिव क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करो या फिर मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बनाओ, बात बराबर है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू प्लस मॉड एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। अब देखो भाई, ये तो मजा आ गया। अब ये आ गया, अगर एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू को मैं ए ले लूँ, ए प्लस मॉड ए जीरो है। अब बताओ ए प्लस मॉड ए जीरो कब होगा, कब कोई नंबर है उसका मॉड को ऐड करोगे तो जीरो हो जाएगा। एक तो तरीका है ए खुद जीरो हो जाए, दूसरा अगर मैं एक कुछ भी पॉजिटिव ले लूँ, टू ले लूँ, तब तो ये होगा ही नहीं, टू प्लस टू फोर आ जाएगा। लेकिन अगर ए में निगेटिव ले लूँ तो ये निगेटिव रहेगा माइनस टू, लेकिन दूसरा वाला तो पॉजिटिव है, तो माइनस टू प्लस टू जीरो आ जाएगा। अच्छा, मतलब दिस इज पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ यू इज लेस देन इक्वल। अब यहाँ से फिर आप देख लीजिए एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इज लेस देन इक्वल टू जीरो, और फिर से वही वेवी कर्व यहाँ आ गया, तो आंसर है एक्स बिलोंगिंग टू। तो आई होप यू एंजॉयड। तो देखो इस तरीके से भी ये मेथड 6 से भी कर सकते हैं, और मेथड है इसको करने का। अब देखो जितना मेथड से आप कर रहे हो उतना ही आपका क्या हो रहा है, थॉट प्रोसेस जो है वो डेवलप हो रहा है। अब कैसे, फिर से मॉड एक्स माइनस वन मॉड एक्स माइनस टू लिया, और इसको हमने क्या कर दिया, वन लिया। अब देखो स्क्वायर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, ठीक है। अब कोई बच्चा बोलेगा सर ये समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू वन, ये तो इसका फील आ रहा है। एड इफ मॉड एक्स माइनस वन अगर मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख दूं और मॉड एक्स माइनस टू को कॉस स्क्वायर थीटा लिख दूं, तो कुछ इस टाइप का फील आ रहा है सर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज वन। अच्छा, मैं साइन स्क्वायर थीटा क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये क्वांटिटी नॉन निगेटिव है, मतलब या तो ये जीरो होगा नहीं तो पॉजिटिव होगा, और कोई चीज़ का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा या तो जीरो होगा या पॉजिटिव होगा। अब तुम दो पॉजिटिव क्वांटिटी को जोड़ के वन ले रहे हो, तो वो क्लियरली इस फॉर्म में जा रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन, राइट। क्योंकि ये क्वांटिटी भी जीरो से वन के बीच में घूम सकता है, ये भी जीरो से वन के बीच में घूम सकता है। अब क्यों, क्योंकि मॉड एक्स माइनस वन दो हो नहीं सकता है, अगर ये दो होगा तो मॉड एक्स माइनस टू माइनस वन हो जाएगा। अब यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ, एक्स माइनस वन क्या आ गया भाई, मुझे एक्स निकालना है ना, तो फर्स्ट इक्वेशन से एक्स माइनस वन प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, मतलब एक्स इक्वल टू वन प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा इक्वेशन से क्या गया, x माइनस टू इज प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो x इक्वल टू टू प्लस माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब तुम ध्यान दो, अब ये दोनों x है, अब x का तो चार वैल्यू आ रहा है, पहला से बता रहा है वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, फिर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा बता रहा है टू प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और टू माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसमें से कौन सा वैल्यू मैं x का ले सकता हूँ,
तो अगर x ये भी है, x ये भी है, तो ये दोनों साइड से x इक्वल हो जाना चाहिए। इसका मतलब इसमें जो भी वैल्यू है ये और ये वो इक्वल होना चाहिए, ये और इसके। अब क्या क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये इसके इक्वल हो, नहीं तो इसके इक्वल हो, या फिर ये इसके इक्वल हो, ये इसके इक्वल हो। चलो देखते हैं, इसमें गेम खेलते हैं। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगर 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा से इक्वल है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो हो गया 3 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2, तो साइन थीटा इज 1। ठीक है, साइन थीटा अब क्या था, अगर साइन थीटा 1 है तो मेरे पास मॉड एक्स माइनस 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। तो एक्स माइनस 1 कितना आ गया, प्लस माइनस 1। अब खेलते रहो क्वेश्चन से, देखो मेरे पास आंसर आ गया तो 0 नहीं तो 2। अब बताओ 2 जो है सेटिस्फाई कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। 0 सेटिस्फाई कर रहा है, नहीं। ठीक है ना, तो क्योंकि मैंने मॉड एक्स माइनस 1 को साइन स्क्वायर थीटा लिया था ना, और साइन स्क्वायर थीटा 1 आ गया, एक्स का वैल्यू 1 2 भी आ रहा है, तो 2 जो है यहाँ पे एक्सट्रानियस सॉल्यूशन दे रहा है। ठीक है, लेकिन तुम ध्यान देना, मुझे तो ऑलवेज ये प्लस ये 1 चाहिए था, तो अब मैं इक्वेट कर रहा हूँ, तो यहाँ से अपने पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, वो है 0। फिर अब मैं दूसरा को इक्वेट करूंगा। अब देखो, अब मैं जैसे 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा को अब 2 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा से इक्वेट कर दूं, ध्यान देना, तो क्या मजा आएगा। तो यहाँ से मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अरे ये तो आइडेंटिटी हो गया, मतलब अगर x का वैल्यू ये रहा और x का वैल्यू ये रहा, तो ऑलवेज ट्रू होगा, वो ऑलवेज ट्रू होगा। इसका मतलब क्या है, मतलब x इक्वल टू 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो है, ये ऑलवेज वर्क करेगा इस क्वेश्चन में। अब साइन स्क्वायर थीटा तो 0 से 1 तक मूव कर सकता है, तो 1 में अगर मैं ऐड कर दूं 0 से 1 तक मूवमेंट वाला एडर, तो ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा भाई, मिनिमम जाएगा 1 प्लस 0 1 तक, और मैक्सिमम ये 2 तक जा रहा है। इसका मतलब कोई भी वैल्यू 1 से 2 तक जो है काम कर जाएगा, एंड इंडीड यू नो एक्स 1 से 2 तक कोई भी वैल्यू काम कर जाएगा। तो फर्स्ट, अगर मैं इसको इससे इक्वेट किया, पीएनसी ले रहा हूँ, ठीक है, तुम ध्यान देना, देखो क्या मजेदार सॉल्यूशन है। अगर ये मैं इससे इक्वेट किया, तो मेरे पास सिर्फ एक सॉल्यूशन आया, लीगल 0। नहीं, मतलब 0 इज ऑल्सो नो द सॉल्यूशन, तो ये तो इलीगल दे दिया भाई, इसमें से कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब इससे इसको किया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ गया। सिमिलरली मैं इसको इससे करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना जाएगा, -1, तो कोई सॉल्यूशन नहीं देगा, मतलब कोई सॉल्यूशन नहीं देगा यहाँ पे। हाँ, और अगर आप इसको इससे करोगे, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, तो फिर इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन देगा। तो मतलब इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इन 1 to 2। तो देखो, इससे भी जो है आप क्वेश्चन को बना सकते थे, ये भी एक मेथड था सॉल्व करने का। अब कोई बच्चा बोलेगा सर और कोई मेथड है क्या सॉल्व करने का, तो सोचो, अगर मैं मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1 दे, तो क्या और कोई तरीका हो सकता है इसको सॉल्व करने का। इनफैक्ट ऑलरेडी हमने बहुत तरीके से कर लिया। तो अब ये सिर्फ में जो बच्चे और जो शिक्षक देख रहे हैं, आप इसको एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर से भी सोच सकते हो। क्योंकि इमेजिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है मॉड जेड माइनस 1 प्लस मॉड जेड माइनस 2 इज 1। तो अब मैं क्या किया, ये तो मैं 1D में था, सो आई हैव इनलाइटेंड द प्रॉब्लम इन 2D। अब 2D में सॉल्व करना, विजुलाइज करना ज़्यादा आसान हो गया, क्यों, क्योंकि अगर 2D में ये क्वांटिटी क्या है, ध्यान से देखो, अगर z मेरा 1 है और z का डिस्टेंस कॉम्प्लेक्स नंबर का 2 से, सम ऑफ डिस्टेंस अगर 1 है, इफ सम ऑफ डिस्टेंस इज नॉट 1, तब तो ये एक इलिप्स हो जाएगा, मतलब इफ मोर देन 1 होगा तो, अगर लेस देन 1 होगा तब तो एम्प्टी हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये प्लस ये सम जो है इक्वल टू ये चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, बिकॉज इट्स लाइक ए पी बी, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी वांट ए पी प्लस पी बी इज ए बी। जैसे ही मैं 2 डायमेंशन में गया, तो मुझे दिखा भाई 2 डायमेंशन में पॉसिबल ही नहीं है पॉइंट, तो पॉइंट यहाँ पे हो नहीं सकता है, कहीं नीचे हो नहीं सकता है, तो पॉइंट को इसी के बीच में होना होगा, सच दैट ए पी प्लस पी बी इज ए बी। तो आप देखो, आप इसको डायमेंशन रेज करके भी क्वेश्चन को कर सकते थे। सो दिस इज द आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप कैसे एक सवाल को लेते हो
और इसको मल्टीपल तरीके से जो है बनाते हैं, राइट। और एक्चुअली इसको सोचा जा सकता है और तरीका से सोचा जा सकता है। आप सिमेट्रिसिटी भी इंड्यूस कर सकते हो, जैसे देखो मॉड x माइनस वन प्लस मॉड x माइनस टू। तुम ऐसा सोचो, जो मैं अगर ये वन है और x का डिस्टेंस ये, तो अगर मैं 3/2 के अबाउट अगर डिफाइन कर लूँ फंक्शन को, तो सिमेट्रिक हो जाए। मतलब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन हो जाए कुछ y माइनस 3/2 और y प्लस 3/2, कुछ ऐसा हो सकता है क्या? तो वो भी आप सब्सटीट्यूशन कर सकते हो, क्योंकि अगर तुम ये देखना चाहते हो, ये सपोज y माइनस 3/2 हो जाए और y प्लस 3/2 हो जाए, क्योंकि इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के अबाउट भी जो है वो मैं सोच सकता हूँ, राइट। तो यू कैन मेक अ वेरिएबल सब्सटीट्यूशन, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल। तो सपोज मैं x को एक y प्लस हाफ ले लूँ और y प्लस 3/2 ले, तो x माइनस वन कितना आ जाएगा, y प्लस हाफ, और x माइनस टू कितना हो जाएगा, देखो y माइनस हाफ। तो मेरा सवाल जो है वो बदल गया, y प्लस हाफ प्लस y माइनस हाफ इक्वल टू वन। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, अब मैं देख सकता हूं अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा, अगर अल्फा इसका सॉल्यूशन होगा तो माइनस अल्फा भी इसका सॉल्यूशन होगा, राइट। क्योंकि अब ये हो गया डिस्टेंस हाफ से और माइनस हाफ से, सम ऑफ डिस्टेंस जो है वो अपन के पास वन है। अब देखो गैपिंग वन है, तो मतलब अल्फा अगर सॉल्यूशन होगा माइनस अल्फा भी होगा। इसके लिए तुमको ये ग्राफ डिकोड नहीं करना होगा, क्यों? क्योंकि देखो अब अगर अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अल्फा प्लस हाफ प्लस अल्फा माइनस हाफ इज वन। अगर कोई बंदा माइनस अल्फा दे दे, तो माइनस अल्फा प्लस हाफ इज बेसिकली ये टर्म हो गया, एंड प्लस माइनस अल्फा माइनस हाफ माइनस मॉड, ये टर्म हो गया इस वन। अच्छे भाई, मजा आ गया। मतलब इसका जो भी सॉल्यूशन होगा सिमेट्रिक और ऑरिजिन होगा। अब ये अगर सिमेट्रिक और ऑरिजिन होगा, तो मुझे y तो पता ही चल गया भाई, माइनस हाफ से हाफ होगा। तो x अपन y प्लस 3/3 लिखा था, तो y में अगर 3/2 ऐड कर दूं, 3/2 माइनस हाफ से 3/2 प्लस। मतलब आप जितना देर स्क्रीन देखिएगा उतने नए नए सॉल्यूशंस आपको मिलते जाएंगे। ये भी फिर से तुम्हारा एक नया सॉल्यूशन होगा। हालांकि इसको वेक्टर से भी किया जा सकता है, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर्स से और दूसरे तरीके में भी किया जा सकता है, लेकिन चूंकि मैं बेसिक आइडियाज दे रहा था यहाँ पे। अब देखो आर्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इसी को बोलते हैं, आप कैसे क्वेश्चंस को लेके मल्टीपल तरीके से जो उसको सॉल्व करते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन है, और तो ए और बी रियल है सच दैट मॉड ए प्लस मॉड बी इज मॉड ए माइनस वन। ये थिन बुक विद फट आइडियाज में भी है, और कुछ स्टैंडर्ड किताब में भी आपको ये सवाल मिल जाएंगे। मॉड बी प्लस ए कॉमा बी जो है वो रियल नंबर है। आपको फाइंड करना है मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड ए माइनस। तो देखो इस सवाल को आप बहुत तरीके से बना सकते हो। एक तो मैं गोलू भोलू के तरीके से आपको चाहूंगा जो यू सॉल्व इट। एक दूसरा केस मेकिंग करते रहो। मतलब ये जीरो है पॉइंट, ठीक है। अगर मैं ए के परस्पेक्टिव और बी के परस्पेक्टिव, तो ए यहाँ है, बी यहाँ है। अगर डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम ऑरिजिन प्लस डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम ऑरिजिन शुड बी सेम एज डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम वन। आप देख रहे हो गेम यहीं से शुरू हो गया, प्लस डिस्टेंस ऑफ बी फ्रॉम वन। Similarly, it should be same as distance of a from minus वन and distance of b from minus वन। एक तो आपको दिख रहा है, अगर मेरे पास नंबर लाइन है ये माइनस वन जीरो वन। अब बताओ क्या मेरे दोनों नंबर, ये गोलू और ये गोलू का भाई भोलू, क्या ये दोनों वन के इस साइड रह सकता है क्या? अब देखो अगर दोनों इसके इस साइड रहा, तो इसका डिस्टेंस जो सम ऑफ डिस्टेंस जो जीरो से होगा दोनों का, और सम ऑफ डिस्टेंस जो वन से होगा, वो तो जिंदगी में सेम नहीं आने वाला है, क्योंकि ये डिस्टेंस डेफिनेटली कम होगी, और माइनस वन से तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ये तो पक्का है जो ये दोनों ए और बी जो है वो एक से बड़ा हो नहीं सकता। सिमिलरली उस लॉजिक से तुम बोल सकते हो क्या गोलू और उसका भाई भोलू यहाँ रह सकता है क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि फिर से ये सम ऑफ डिस्टेंस
x से बड़ा हो गया। ऐसे ऐसे एनालाइज करके आप आंसर बताइए मिनिमम वैल्यू a माइनस बी का क्या होगा। हालांकि इसका मैं दूसरा सॉल्यूशन आपको ज्योमेट्रिकली दे रहा हूँ। अब देखो इस पूरे इक्वेशन को तुम एक पैकेट में पैकेज कर सकते हो। कैसे? क्योंकि देखो ये तीनों क्वेश्चन जो है, ये एक्सप्रेशन एक्चुअली ऐसे लिखा गया है, इज इक्वल टू a माइनस वन प्लस बी माइनस वन। सो आई वांट गोलू बोलू तरीके से आप खुद सॉल्व कर लो। एंड a प्लस वन प्लस बी प्लस। तो अब देखो इट्स लाइक a माइनस जीरो बी माइनस जीरो, ए माइनस वन बी माइनस वन, ए प्लस वन बी प्लस वन। ए प्लस वन को भी लिख सकते हैं a माइनस माइनस वन प्लस बी माइनस। सो व्हाट आई हैव फाउंड इज अ कॉमन डीएनए, इसका कॉमन डीएनए इस तीनों। आई विल पैकेज इट एंड इट्स नोन एज पैकेजिंग इन अ सिंगल एक्सप्रेशन। कैसे? अब देखो मैं इसको लिख सकता हूँ x माइनस ए, और ऐसे लिखो a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स। अगर मैं इसको एक फंक्शन ऑफ x ले लूँ तो मेरा क्या सवाल बोल रहा है, एफ ऑफ जीरो, एक्स का वैल्यू जीरो देंगे तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज इक्वल टू एफ ऑफ वन इक्वल टू एफ ऑफ माइनस वन। अब मजा आ गया। मतलब मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए मॉड वाला। ये बाटब कब हो गया? कैसे बाटब कब? मैंने बताया था ये मॉड एक्स माइनस ए प्लस मॉड एक्स माइनस बी है। अब देखो मेरे पास कहीं अगर ये ए और बी है तो ए पे वैल्यू आएगा मॉड ए माइनस बी, बी पे भी मॉड ए माइनस बी इक्वल होगा। फिर अगर एक नंबर ज़्यादा ले लूँ तो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब तुम सोचो मुझे ये फंक्शन का तो ग्राफ आ गया, मुझे जीरो वन और माइनस वन पे सेम हाइट चाहिए। तो अब बताओ ए और बी पता नहीं है कहाँ होगा, लेकिन ये तो पता है अपन को जो जीरो कहीं होगा। जैसे तुम अगर जीरो मिड पॉइंट है, ये वन है और माइनस वन। अब बाटम कर्व सपोज ऐसा है, ठीक है, जो कि इक्वल हाइट दे रहा है ए पे और बी पे, तब तो ये सही, क्योंकि दिस इज करेक्ट डायग्राम। क्यों? क्योंकि मेरा आप तुम देखो ए और बी पे इक्वल हाइट दे रहा है। ये बाटम का बन गया। माइनस वन पे जो हाइट है वही एफ ऑफ जीरो पे है, वही वन पे। तो ए और बी के बीच का गैप कितना है? डेफिनेटली मोर देन टू आ रहा है, राइट। यहाँ पे मॉड ए माइनस बी डेफिनेटली मोर देन। अच्छा, अब अगर मैं इस बाटम कर्व को और ऐसे और इलोंगेट कर दूँ तो स्टिल ए माइनस बी का गैप जो है वो दो से बड़ा होगा। तो मैक्सिमम गैप में कितना ले सकता हूँ? वो तो इन्फिनिटी ले सकता हूँ। मैक्स गैप जो है ए और बी के बीच में वो इन्फिनिटी होगा, लेकिन मिनिमम में कितना ले सकता हूँ? देखो मिनिमम सिर्फ तुम इतना ही ले सकते हो, तो एग्जैक्टली एक वैल्यू माइनस वन आ गया और वन आ गया। क्यों? क्योंकि अगर मेरा ग्राफ एग्जैक्टली इसके रूफ पे माइनस वन जीरो और वन पे सेम आउटपुट देगा। अब अगर इससे मैं छोटा ग्राफ कर दूं, इमेजिन करो अगर मैं बाटम कर्व को इससे छोटा कर दूं, तो अब इस तीनों पे तो सेम हाइट आएगा ही नहीं। तो मतलब कम से कम मैं यहाँ तक रख सकता हूँ, तो कम से कम गैपिंग कितना होगा ए और बी का। आप ए इसको लो, बी इसको लो, ए इसको लो, बी को इसको लो, कोई नहीं मतलब नहीं है। मिनिमम गैप टू का आएगा, और वो गैप कब आएगा? जब एक वैल्यू माइनस वन है। ठीक है, सो दिस इज हाउ आप फंडामेंटली जो है क्वेश्चंस को इमेजिन कर सकते हो एंड आप उसको डिकोड करके सॉल्व कर सकते हो। अब इसी में एक लास्ट चीज आता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला मॉडल्स को कैसे अप्रोच करें फील्ड से। तो ये बेसिकली हम लोग अपने क्लासरूम प्रोग्राम में या फिर कोर्सेज में जो अगर हम लोग फ्यूचर में लाएंगे, इस हिसाब से आप लोग को पढ़ाया जाएगा परफेक्टली। कोई बहुत ज़्यादा मतलब अपने को हाइप नहीं करना है जो हम सुपर टीचर हैं, क्योंकि जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं सबको ये चीज़ पता है, राइट। एवरीवन टीचेज मोर और लेस सेम। हाँ, मे बी आर्ट ऑफ टीचिंग अलग अलग होता है, तो एवरी टीचर हैज़ देयर यूनिक आर्ट ऑफ टीचिंग। इसमें देखो, इसमें एक आपको ट्रायंगल इनइक्वालिटी भी बोला जाता है। इफ एक्स वाई जेड जो है अगर वो रियल वर्ल्ड से बिलोंग कर रहा है, देन मॉड ऑफ एक्स माइनस वाई जो होता है वो छोटा होगा। जनरलाइज वर्सन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी में दे रहा हूँ। आप मॉड एक्स प्लस मॉड वाई पे भरते हो, दिस इज मॉड जनरल माइनस वाई से। अब देखो इसको, इसका प्रूफ फिर मैं गोलू भोलू बिक्की से कर सकता हूँ, तीन बंदे को लाके एंड दिस इज नोन एज ट्रायंगल इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि द नेम ट्रायंगल इनइक्वालिटी इज बेसिकली कमिंग फ्रॉम द फैक्ट द थ्योरम इज परहैप्स दे आर interpreted as asserting that for any triangle on number line the length of any sides never exceeds the sum of the length of other two। जो आप ट्रायंगल में सोचते हो, तो ये अगर सिंगल डायमेंशन में, वन डायमेंशन में भी वही बोल रहा है। तो अपने पास मान लो तीन नंबर है, एक्स और एक वाई है, एक जेड है। अब सवाल है एक्स वाई जेड का तो मुझे पैरिटी पता नहीं है। मैं ऑफ कोर्स
तीनों को अलग अलग ले रहा हूँ क्योंकि अगर दो इक्वल हो गया तो ये ऑब्वियस हो जाएगा। अब एक्स वाई जेड कितने तरीके से आ सकता है नंबर लाइन पे, देखो 6 तरीके से आ सकता है। तो अगर तुम एज अ सीरियस किड अगर ये 6 केस एनालाइज कर लो तो मजा आ जाएगा भाई, क्योंकि 3 फैक्टोरियल आएगा। आप फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास 3 चॉइस है, या तो एक्स को रखो, वाई को रखो, जेड को रखो। सपोज मैं एक्स यहाँ रखा, आप जेड वाई यहाँ रख सकता हूँ। अगर मैं वाई यहाँ रखा तो जेड एक्स यहाँ रख सकता हूँ, तो वाई यहाँ रखा तो एक्स जेड यहाँ रख सकता हूँ। तो आप सिमिलरली हर एक केस को एनालाइज कर सकते हो। जेड किया तो एक्स वाई यहाँ रख सकता हूँ, जेड यहाँ रखा तो वाई एक्स यहाँ रख सकता हूँ। मजा लो भाई, मजा लो क्वेश्चन। अब क्या बोल रहा है, मुझे एक्स और वाई का डिस्टेंस चाहिए। तो देखो ये डिस्टेंस है एक्स और वाई का, और इफ आई कॉल ये वाला डिस्टेंस मेरा एक्स वाई के बीच। ऐसे मैं ये एरो से आपको फील दिलवा रहा हूँ, और एक्स और जेड के बीच का डिस्टेंस तुम्हारा ये आ गया। तो बोल रहा है एक्स माइनस जेड के बीच का जो डिस्टेंस है और प्लस जेड और वाई के बीच का डिस्टेंस है, क्लियरली ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस वो तो बड़ा ही है, तो दिस फील्स ऑब्वियस। चलो नेक्स्ट केस में फील करते हैं। एक्स और वाई का जो डिस्टेंस है ये वाला, इससे बड़ा होगा एक्स और जेड का डिस्टेंस और प्लस जेड और वाई का डिस्टेंस। अब देखो बड़ा तो नहीं है क्योंकि एग्जैक्टली सेम है, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस सेम है, तो इक्वालिटी इज देयर। सो दिस इज इक्वालिटी केस ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखो एक्स से वाई का डिस्टेंस ये हो गया, और एक्स से जेड का, जेड से वाई का, ये भी वाई सेम हो गया, इक्वालिटी केस। यहाँ पे देखो एक्स से वाई का ये डिस्टेंस है, इससे बड़ा है एक्स जेड प्लस वाई से जेड, क्लियरली यहाँ वाई से जेड ही बड़ा हो गया। एक तो यही डिस्टेंस बड़ा हो गया ना इससे। आई एम नॉट राइटिंग दिस डिस्टेंस, दिस मतलब अलोंग द लाइन आई एम टेलिंग, वो फील के लिए। फिर देखो एक्स वाई से डिस्टेंस बड़ा होगा जेड वाई, इससे ऑब्वियस है। यहाँ पे भी देखो ये ऑब्वियस है क्योंकि ये डिस्टेंस ही बड़ा होगा। तो मतलब अब चीज आपको कैसे कॉमन सेंस जैसा फील लगने लगा। ठीक है, अब ये कॉमन सेंस लग गया। मतलब मेरे पास कोई भी 3 नंबर लाइन पे है एक्स वाई जेड। अब देखो सम ऑफ टू साइड, जैसे ये प्लस ये रखोगे तो ये थर्ड साइड वैसा बिहेव कर। इनफैक्ट आप ये प्लस ये वाला ऐड करोगे, अगर इसको मैं अल्फा बोल दूं ये बीटा, तो ये क्या है, मॉड अल्फा प्लस बीटा। ये भी हो गया ना, मॉड अल्फा प्लस बीटा इज लेस देन मॉड अल्फा प्लस मॉड। तो दिस इज द वर्जन ऑफ ट्रायंगल इनइक्वालिटी आप पढ़ते हो। अगर मैं जेड को 0 कर दूं तो मॉड एक्स माइनस 1, क्योंकि जेड कुछ भी हो सकता है, तो स्पेशल केस में ये आ जाएगा। और इक्वालिटी कब आएगा आप फील ही कर सकते हैं। तो दिस इज द वे, मतलब जब आप कोई भी चीज़ों को फर्स्ट प्रिंसिपल से पढ़ते हो ना, बहुत ही मज़ा आता है, एंड इट बिकम्स वेरी इनरिचिंग। और फिर आपको ऑब्वियसली वो चीज़ें जो है वो दिखने लगती है। ठीक है, तो आपको कैसा लगा वो आप ज़रूर बताइएगा, एंड आई विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, हालांकि मैं एक चीज़ और, जो जिनको ये सब कुछ पता है स्टिल दे वांट टू गेन समथिंग फ्रॉम दिस लेक्चर, तो वो एक मैं रिग्रेस आपको प्रूफ बताना चाहता हूँ। जैसे बहुत सारे बच्चे करते हैं, फाइंड प्रूफ दैट, सपोज मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, एफ ऑफ एफ डिफाइंड फ्रॉम आर एक्सेप्ट टू आर एक्सेप्ट 5, क्या लें, गिवन बाई एफ ऑफ एक्स ले लेता हूँ 5x प्लस 1, और 2 नहीं है तो नीचे में x माइनस 2। ठीक है, अब हमको प्रूफ करना है ये बाइजेक्टिव है। आप कैसे प्रूफ करते हो, देखो पूरा अगर आपको लीगल प्रूफ करना है तो अगर मैं चेक करूं बाइजेक्टिव है तो पहले इंजेक्टिविटी चेक करूंगा। देखो अगर आप फॉर्मली प्रूफ करते हो तो कितने कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूं सपोज एफ एक्स इक्वल टू एफ वाई। ठीक है, आप देखो इंजेक्टिव मतलब वन वन फंक्शन है, तो अगर मेरा फंक्शन मेनी वन हुआ तो दो आउटपुट पे एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई पे ऐसा हो सकता है, इवन इफ इनपुट इज डिफरेंट स्टिल आउटपुट इज सेम। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई से ओनली कंक्लूजन है, इफ ओनली कंक्लूजन इज एक्स इक्वल टू वाई, तब तो ये वन वन हो जाएगा कि दो आउटपुट इक्वल है कब, जो सिर्फ और सिर्फ जब इनपुट इक्वल है। लेकिन इसका ये भी वन ऑफ द कंक्लूजन हो सकता है इवन इफ एक्स इज नॉट वाई। ठीक है, तब तो ये मल्टी मेनी वन फंक्शन हो जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स में प्यार से यहाँ पे लिख दिया एक्स माइनस 2, और एफ ऑफ वाई को भी प्यार से 5y प्लस 1 बाई वाई माइनस 2। अब मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्यों,
आई कुड नॉट मल्टीप्लाई इफ x इज 2 एंड y is 2, लेकिन क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जो फंक्शन का डोमेन है वो 2 नहीं है, तो x और y जो है यहाँ पे 2 नहीं है, तो हेंस लीगली आई कैन मल्टीप्लाई। तब मैं 5x प्लस 1 इंटू वाई माइनस 2 इज 5y प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। अब आप देखिए ये आ रहा है 5xy माइनस 10x। मैं सिर्फ बता रहा हूँ जो कैसे पढ़ते हैं, ये बहुत टफ प्रॉब्लम है नहीं, आप ग्राफ से एक लाइन में कर सकते हो, इसको डेरिवेटिव से कर सकते हो। कोई बच्चा बोलेगा ये बहुत आसान था सर डेरिवेटिव से, अरे मैं क्या सिखा रहा हूँ वो समझो। इसीलिए आपसे रैंक नहीं होते। -2 हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या गया 11y इज 11x। अब देखो दैट इम्प्लाइज x इक्वल टू 1, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही कंक्लूजन है इससे, तो मेरे पास अगर आउटपुट सेम है तो इनपुट सेम है, तो अब मैं इसको इंजेक्टिव बोल सकता हूँ। मजा आता है जब सब्जेक्टिव चेक करते हैं। देखो अब सब्जेक्टिव चेक करने के लिए फॉर्मली ये आप टेक एन आर्बिट्ररी वैल्यू, आर्बिट्ररी मतलब कोई भी एक रैंडम वैल्यू तुम b ले लो जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है एक्सेप्ट 5। क्यों मैं ऐसा लिया, क्योंकि मेरे कोडोमेन में ही 5 नहीं है, तो आप ऐसा नंबर ले ही नहीं सकते जो कोडोमेन में नहीं, ठीक है। तो अब मुझे क्या निकालना है, अब अगर मैं इफ वी कैन गेट सम x बिलोंगिंग टू r माइनस 2 विच इज इन द डोमेन, देख रहे हो ये कोडोमेन में अगर एक भी पॉइंट ले कोडोमेन का, उसके करस्पॉन्डिंग अगर एक डोमेन में पॉइंट मिल जाए सच दैट f ऑफ x इक्वल टू b, तो हम लाउड एंड क्लियरली अनाउंस कर देंगे फंक्शन जो है वो ऑन टू है। ऑन टू मतलब ईच एंड एवरी वैल्यू इन कोडोमेन ले। चलो अब इस गेम को खेलते हैं। तो इसका मतलब 5x प्लस 1 बाय x माइनस 2 को b होना होगा। अब सिंस x इज नॉट 2 अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, तो अब मैं फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। यहाँ से आ गया 5x प्लस 1 इज बी एक्स माइनस 2b, तो x इंटू 5 माइनस बी जो है इक्वल टू माइनस 2b माइनस 1। अब फिर मैं डिवाइड क्यों कर पा रहा हूँ, क्योंकि सिंस वी हैव एज्यूम्ड b बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट 5। देखो ये होता है रिग्रेस डूइंग, दैट्स व्हाई आई एम अलाउड टू डिवाइड बाय दिस। तो अब मैं कर सकता हूँ, तो 5 माइनस बी नॉन जीरो है, तो वी कैन गेट x इज माइनस 2b माइनस 1। मतलब कोई भी बी तुम उठा लो कोडोमेन से, भाई कोडोमेन से कोई भी बी तुम उठा लो, एवरी रियल नंबर एक्सेप्ट 5, उसके करस्पॉन्डिंग x तो मिल ही जा रहा है। thus there exist x belonging to codomain, मतलब all real except 5 such that f of x equal to b, तो f is surjective। तो अब मैं बोल सकता हूँ ये जो फंक्शन था मेरा वो बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो जब आप ऐसे एक डीप एनालिसिस से चीज़ों को पढ़ते हो ना, तो चीज़ें सिंपल होती चली जाती है। दैट्स द पॉइंट इन रीडिंग थिंग्स विद डेप्थनेस। तो अगर इस टाइप का आपका डेप्थनेस चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग में, तो हमारा अपकमिंग कोर्सेज जो आने वाले रहते हैं, अभी फ़िलहाल नहीं है कोई कोर्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप ऑलरेडी इनरोल करो, और हम लोग का यही मकसद है जो वी डोंट वांट यू टू लीव एनी कोचिंग एंड बी कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन अस। अभी एज ऑफ नाउ ऐसा हम लोग फ्यूचर में करेंगे। अभी आप जहाँ पे कोचिंग करो वो करो, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जो है एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग हम लोग कराएंगे। वी आर लाइक प्रॉब्लम सॉल्वर। उसमें कोर्सेज आएंगे जो 5000 से शुरू होंगे अप टू 15,000 20,000 तक कोर्सेज आएंगे, डिपेंडिंग अपॉन किस लेवल एंड नंबर ऑफ क्लासेज हो रहे हैं। तो आप सिलेबस कंप्लीट करो, हम लोग 11th के भी कोर्सेज लाएंगे, 11th के रिवीजन क्लासेस लाएंगे, ठीक है। और उसमें धीरे धीरे अनाउंसमेंट हो जाएगा। और तब तक अगर जो बच्चे ऑलरेडी एक बार सिलेबस 60-70% कर चुके, यू कैन गेट बोथ ऑफ आवर बुक, थिंक बुक विद फैट आइडियाज। ऑसम कंटेंट है, मतलब इट्स द intersection of that book with any existing content in the market is an empty set almost, or tending to empty set, ठीक है। तो पूरा न्यू प्रॉब्लम चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है रैंकर्स के लिए। दूसरा रैंकर्स ब्लूप्रिंट है, तो उसमें एडवांटेज है, बहुत ही बेस्ट सिमुलेटेड प्रॉब्लम्स है, और वो एग्जैक्टली सॉल्यूशन के साथ भी है, एक्सेप्ट सम 20 to 30 क्वेश्चंस आर नॉट सॉल्व लास्ट में, एंड दैट्स वेरी इंटेंशनल। अब बहुत बोल रहे हैं जो 20 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है, 30 क्वेश्चन सॉल्व नहीं है। अरे भाई अगर मैं 250 क्वेश्चन 270 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं बुक में, और आपको 20 क्वेश्चन एज ए प्रैक्टिस दिए गए हैं, तो इट्स नॉट अ क्राइम, वो जान के दिए गए। आप फिर भी नहीं कर पा रहे हो वो 20 क्वेश्चन आफ्टर सॉल्विंग 270, सो देयर इज नो नीड, नो यूज
ऑफ यू टू गेट दैट बुक। तो फिर आप खुश रहिए थिंक बुक विद फट आइडियाज में। ठीक है, थैंक यू, हैव अ गुड डे, विल मीट सून अगेन विद सम मोर लेक्चर्स which will enlighten you and which will make your love for mathematics more deep. Our mission is to educate everyone in the country and beyond. Thank you, have a good day.